the Nepal crisis is also strangely singeing the political dynamics of India. A warning by opposition parties that similar scenes could be witnessed, especially with the youth of anger, has been replied by the BJP, suggesting that this is a sinister ploy of the opposition, hoping that similar scenes take place here. Youth of Nepal have pulled down those in power protesting against corruption, nepotism and lack of economic growth. It resulted in the resignation of Prime Minister KP Sharma Oli and a majority of his cabinet. Opposition leaders across the border in India fear that this anger of the youth can spill over and burn India as well. नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। Shiv Sena mouthpiece Samna in his editorial published on Wednesday said, and I quote, "The fire in Nepal is a spark of hunger and unemployment. India should learn a lesson from this. There has been a destruction of employment in India. 80 crore people have to survive on 5 to 10 kilos of ration given free by the government. Modi Shah are winning elections by destroying democracy. All the pillars of democracy seem to be collapsing. The politics of religion and caste has reached its peak. All these disorders are dangerous for the country." यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है, उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है, लोकतंत्र है, लेकिन भारत आज तक जो बचा है वो सिर्फ यहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और गांधी को आज भी ये देश मानता है, इसलिए ये लोग बचे हुए हैं। Pointing to the earlier unrest and protest in Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan and other neighboring countries, the Samna editorial said, and I quote, "The people overthrew the governments of Sri Lanka and Bangladesh because corruption had become unbearable. When the spark of self-respect ignites in the minds of the people, it does not take long for it to flare up. Then people do not even care about guns and cannons." Unquote. यहाँ भी स्थिति आप बेरोजगारी, युवकों में बेरोजगारी है, या 2-3 लोगों के हाथों में जिस प्रकार पूरे हमारे राष्ट्र की संपत्ति जो है और जिस प्रकार मोदी जी कृत्य कर रहे हैं, तो एक शंकित लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि सबक है, कांग्रेस ने इतनी जड़ें इसकी मजबूत की हैं कि यहाँ के ऐसे हालत नहीं है। IT cell head of BJP, Amit Malviya, replied to opposition warnings on social media. In his post in X, he warned the opposition back that when fire rages, it will burn indiscriminately and would not be selective in its target. Bureau Report, India Today. Meanwhile, viewers, I interviewed Nishikant Dubey, 4 times MP, Lok Sabha of the Bharatiya Janata Party, and he made a claim that Rahul Gandhi is hoping for a similar Nepal-like situation back in India. He said the ploy is the toolkit of what happened in Sri Lanka, then what happened in Bangladesh, and now what's happening in Nepal is being used by Rahul Gandhi along with foreign powers in India to foment the same kind of trouble. Listen in. आपने ये भी बोला है कि जो राहुल गांधी हैं, जो नेपाल में हो रहा है अभी, जो पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी वही चाहते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप ये समझिए कि बांग्लादेश में क्या यही हुआ ना कि वोट चोरी,
इलेक्शन कमीशन ने जो है रिगिंग की। आपको वो पैटर्न नहीं नजर आता। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट कि राज्य सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट? आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में आपने बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया लोकसभा चुनाव, उसी ईवीएम से हराया। तो आप कह रहे हैं जो ये वोट चोरी और वोट फ्रॉड की बात राहुल गांधी के, ये सब सोरोस फाउंडेशन के सारे वो कर रहे हैं। वो वैसी ताकतें जो आप देख लीजिए ना, नेपाल में भी वोट चोरी का ही सवाल हुआ। दूसरा बात आप नेपाल में वोट चोरी का सवाल, यही था जो बालन शाह जो चुनाव जीता 2022 से ये मामला चल रहा है, उस वक्त भी यही बात हुआ ना कि हम तो किसी तरह से जीत गए, नहीं तो आपने हमको हराने की कोशिश की। वो इंडिपेंडेंट था बालन शाह, मतलब 2022 से जो आंदोलन चला और उसके बाद जो माहौल बना, तो पूरा उसके बाद करप्शन, उसने करप्शन अनएम्प्लॉयमेंट उसको इशू बना लिया। लेकिन पहला इशू जो है काठमांडू में वोट चोरी से इशू 2022 resentment of politicians of the way they have been living, corruption में पहला जो बालन शाह जीता। अच्छा, बालन शाह ने जो अपना चुनाव का कैंपेन जेड जो स्टार्ट किया, उसके पीछे रीजन वही था। 2022 में वो चुनाव जब जीता तो इसी के आधार पर चुनाव जीता और उसने उसको आगे बढ़ाया। पर वो तो एक बहुत पॉपुलर लीडर है, मतलब जेन ज़ी के साथ में एक रैपर रहे हैं, तो उनका तो मतलब अलग ही वो रीच है। नहीं 2022 में जब काठमांडू का वो मेयर हुआ, तो उसने वोट चोरी ही बड़ा विषय बनाया कि रिगिंग होती है, रिगिंग होती है, रिगिंग होती है। इस बार अपने को वोट रिगिंग रोकना है, वोट रिगिंग। तो आप कह रहे हैं उसकी वजह से अभी जो तो लिंक है, तो जब उसी का नेता बना तो उस नेता ने इन चीजों को फिर करप्शन में आगे बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट पे आगे बढ़ाया। आज क्या हो रहा है? आप अग्निवीर के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो। आप करप्शन के ऊपर जो है खुद करप्ट लोगों के साथ घूम रहे हो। उसके बाद जो है तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक आप जब घूमते हो तो क्या काम कर रहे हो? तो आप जो है बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जब कोशिश करते हो तो मैंने वही बातें कही है, उसमें कोई गलत नहीं कहा है कि जो राहुल गांधी जी जो एजेंडा को सेट करते जैसे जातिगत जनगणना, यदि आपको ध्यान हो तो सोर्स फाउंडेशन का आधार है, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2021 के पहले कांग्रेस के एजेंडा में थे ही नहीं, वो उसके खिलाफ थे। पर निशिकांत जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि कौन सुनता है राहुल गांधी की, तो अगर वो वोट चोरी वोट फ्रॉड बोल रहे हैं और आप कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देंगे इंडिया में जो नेपाल में हो रही है, तो मतलब उनका तो फिर प्रभाव है। उसको यदि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन वो जो नैरेटिव बना, अच्छा, उस नैरेटिव के आधार पर जो देश में होना है उसके बारे में मैं कह रहा हूं। डेमोक्रेसी के लिए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहां इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कोई नहीं बचे, सबको यहां से बाहर